So as we have got some basic introduction about programming and how programming languages were made. Now let us directly jump into C programming. Okay. So this is the first C program which generally every student writes throughout the world. Hello World program. This is the most basic program which you can find. Acha. Now before explaining each part, I would like to give you a disclaimer from beginning that there will be some things which you will not understand maybe today or tomorrow, but eventually जब वो chapter cover होगा then you will understand why this word is kept there. तो वो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा चीज है जो अभी at this stage तुम्हें समझ में नहीं आएगा, but when we will proceed with the classes you will understand. But most of the things we will try to understand that why we are doing this. Okay. So first of all, let us start understanding from the first statement. So first statement is hash include. So what is the meaning of include? Generally it means to take into consideration, right? Include, इसको include कर लो, मतलब इसको साथ में ले लो, right? So this include also in C programming also इसका काम वही है that it includes other source codes into your program. What do we mean by that? Suppose करो अब कोई एक दूसरा फाइल है, मुझे उसको अपने प्रोग्राम में यूज करना है, या I need to use some functionalities from some other program into my program. तो वो सारे requirements के लिए I use the include function, include keyword, इसको keyword बोलते हैं. So I will use the include keyword, and in between the less than and the greater than sign, I will specify that particular file which contains that logic. तो जैसे यहाँ पर stdio.h, so this is called a header file because हम लोग उसको हेडिंग ऊपर में दे रहे हैं. ओके, एंड हेडर फाइल्स का एक्सटेंशंस .h होता है, एंड दिस stdio.h is one of the many header files which are standard header files which are available in C programming language. तो stdio में क्या है? It is standard input output library. ओके, सो हम लोग अपने प्रोग्राम में जितना भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करेंगे, सो दिस पर्टिकुलर हेडर फाइल विल हैव द लॉजिक टू इंप्लीमेंट देम. ओके, एंड वी विल सी द यूजेस ऑफ दिस हेडर फाइल वेरी सून. नेक्स्ट इज दिस इज कॉल्ड द कमेंट. नाउ व्हाट इज अ कमेंट इन अ प्रोग्राम? एनीवन? व्हाट इज अ कमेंट इन अ प्रोग्राम? Yes, to write some description, some notes. अब जैसे suppose यहाँ पर क्या है? I am writing, this is my first program in CSE 251. So this is like a suppose now you must have studied poems in English, right? तो उसमें कुछ tough words होता तो हम लोग क्या करते थे? उसको underline करके बगल में pencil से उसका meaning लिखते थे, right? So it is like that whenever you write a piece of code, so बगल में एक छोटा सा रफ नोट टाइप का you give that okay this code is doing this, or this particular line is doing this, or this program is written for achieving this purpose. इस तरह का एक छोटा सा नोट we write. So what are the benefits of this? अब मान लो कि मैं कोड लिख रहा हूँ, मैंने 1000 लाइन का कोड लिख दिया. Now मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया वो कोड. Now I left the company, I went for my higher studies. तो मेरे बदले कोई आएगा वो सेम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए. तो इफ आई हैव रिटन कमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर कोड, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर हिम और हर टू गो थ्रू द एंटायर प्रोग्राम एंड अंडरस्टैंड कि कितना तक काम हुआ है एंड और आगे अब कितना कैसे करना है. सो इट हेल्प्स इन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर प्रोग्राम. इज दिस क्लियर? व्हाई डू वी यूज कमेंट्स? कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर. कंपाइलर को कमेंट्स दिखता ही नहीं है. It is just for the programmer's benefit, you can say. All right? ठीक है. और कमेंट्स में कोई सिंटैक्स नहीं होता, हम लोग जैसे चाहे लिख सकते हैं इंग्लिश, because it is for our understanding at the end of the day. Okay. All right. Then this is the main. तो main क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि ये main है. She is the main girl. मतलब और he is the main guy. He is the main person in the company.
ही इज द मेन पर्सन ऑफ द कॉलेज, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, राइट? सो दैट मीन्स in our program also this main is the sole important person in the program. So main is the starting point of a C program where the computer begins the execution. Understood? Now why do we write something like int there? You will learn after some time. ठीक है, तो इसको एक बार के लिए होल्ड पे रखो कि ओके हम लोग लिखते हैं इंट, क्यों लिखते हैं वो हम लोग सब सीखेंगे कि वहीं पे क्यों लिखते हैं इंट, और ये इंट का काम क्या है, एवरीथिंग विल लर्न. सो मेन इज दैट पर्टिकुलर फंक्शन विच इज द ड्राइवर ऑफ योर प्रोग्राम. योर एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स एंड एंड्स इन द मेन फंक्शन इटसेल्फ. एंड हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट्स में ओपन और क्लोज करते हैं. इसके अंदर वॉट एवर वी वॉन्ट टू राइट वी राइट द कोड ऑफ आवर प्रोग्राम. क्लियर? इसमें कोई डाउट है? बोलो मेन का काम क्या है. इट्स वेरी लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट, कि मेन का क्या काम है. ओके, नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड printf. तो ये printf क्या करता है? तो दिस printf स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, एक्चुअली इट इज अ फंक्शन कॉल, बट मैं अभी उसको एक स्टेटमेंट की तरह बोल रहा हूं बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज अ फंक्शन कॉल, वो हम लोग करेंगे. सो printf इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू गिव द यूजर और प्रिंट इन फ्रंट ऑफ द यूजर सम आउटपुट. ओके, तो जैसे अगर ये मेरा printf के अंदर इफ आई राइट हेलो एंड वेलकम टू दिस दिस दिस, तो ये ऐसा का ऐसा आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा. क्लियर? सो नाउ let us try to run this particular code in our compilers. Okay, so now what I want is everyone open code blocks. Open code blocks, everyone. What I want you to do is before starting programming, ये configuration करना है code blocks में so that it becomes easy for us. Just go to settings and click on compiler. Go to settings and click on compiler. Inside the window, click tool chain executables. Click on tool chain executables. Okay, click on tool chain executables and यहाँ पे auto detect पे click करो. So what is this doing is it is detecting the compiler which is coming along with code blocks. तो auto detect करके उसका path ये ले आएगा so that it becomes easy for you to compile your code. तो ये हमने ऑटो डिटेक्ट कर लिया कंपाइलर. अब वी आर गुड टू गो विथ आवर प्रोग्रामिंग. ठीक है? सो नाउ हाउ डू वी क्रिएट अ न्यू फाइल इन कोड ब्लॉक्स? वेरी सिंपल. यू कैन ईदर गो टू फाइल एंड क्रिएट अ न्यू सोर्स कोड एम्प्टी फाइल. यू कैन डू इट फ्रॉम हियर और यू कैन जस्ट क्लिक दिस आइकन. यहां पे भी एम्प्टी फाइल यू कैन क्रिएट. सो यू कैन ईदर गो टू फाइल, new and empty file, or you can directly click this particular icon here. तो यहाँ पे empty file क्लिक करता हूं मैं, तो मेरा एक empty file बन गया. Alright. First of all, whenever we will create a new file, we will first save it. Okay, we will first save it. तो इसको save कैसे करेंगे? You can either press Ctrl S or you can click this save button, right? तो कंट्रोल एस करके इसको सेव करो. एंड व्हेन इट इज आस्किंग अस टू सेव, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूं नया. सो लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर हियर. सो सी बैच 2. यहाँ पे I'll just give the name of the file. So let me give it hello.c. So .c extension is for a C program, a C file, right? So this is the file which we have created. Everyone just create a file first जल्दी से. So now let us write our first C program. तो सबसे पहला चीज क्या था? Header file. So let's write our header file. तो hash include stdio.h. तो अब देखो कोड ब्लॉक्स तुम्हारा कितना हेल्प कर रहा है.
तुमने #INCL लिखा है और वो तुमको पूरा दे रहा है. So it helps. So this is the benefit of an IDE, right? I can write C programs in Notepad also. लेकिन Notepad is a very ugly place to write C programs. एक IDE में लिखने से यही फायदा है कि हम लोगों को बहुत क्लैरिटी मिल रहा है. Now what is the next statement? The main function. So main function के लिए int लिखते थे, अभी के लिए एक बार लिख दो without knowing the meaning. Now int main. Okay. इसके बाद में क्या था? What was the next step? The print function. So now I will write. So printf में, so printf is the function जिसके अंदर डबल कोट्स के अंदर whatever I give, it will be printed as it is. तो यहां अगर मैं बोलूंगा, if I write something like this, and एक यहां पे return 0 भी लिखना पड़ेगा. इसका भी रीजन अभी मत पूछना कि रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं. यू विल लर्न व्हेन वी विल डू फंक्शंस. ओके, तो अभी के लिए लिख दो. सो प्लीज टाइप अप टिल हियर. ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू टाइप द स्ट्रिंग विच आई हैव टाइप. तुम कुछ भी लिख सकते हो जो मन में है. ओके, हेलो वर्ल्ड, व्हाटएवर यू वांट टू राइट. कमेंट इज नॉट मैंडेटरी. तुम बोल रहे हो तो इतना ही मन है तो दे देते हैं. कमेंट इज नॉट मैंडेटरी, बट ठीक है. हाउएवर यू शुड गिव कमेंट्स, एंड व्हेन यू विल बी डूइंग प्रोग्रामिंग इन अ कंपनी, तब डेफिनेटली तुम्हें कमेंट्स देना ही पड़ेगा. तो चलो ठीक है, हेलो टू कोडिंग. ओके, सो दिस इज अ कमेंट विच आई हैव गिवन, हेलो टू कोडिंग. सो हैज एवरीबॉडी टाइप्ड अप टिल हियर? देन व्हाट आई वांट यू टू डू इज, now we need to compile the code, or we need to build the code. So for that what we do is go to build and click on build, this build option. So when you click on this, your code gets compiled, and if you want to see the messages कि तुम्हारा successfully compile हुआ कि नहीं हुआ, you can go to view and check the logs option. View में जाके logs को check कर दो, so you will be able to see some messages like this, that build finished, 0 errors. Go to view and select logs. Okay, तो इससे we will be able to understand the messages. तो यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है, तो 0 errors लिखा हुआ आ रहा है. Alright, तो कंपाइल हो गया. And how to run the code? Again go to build and click on run. So once you click on run, you will get your desired output here. So hello comes here. Okay, so whatever string you had given inside the printf, that comes as it is on the output screen. So I want everyone to successfully run this program. Whenever you are writing a code and you come across something like this, so what you are supposed to do is, देखो नीचे में जो मैं बताया ना, व्यू में जाके लॉग्स पे चेक करो, तो वो लॉग्स यही है. यहाँ पे you can find out what is your error, what is the syntax error. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि unexpected semicolon. तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली तुम्हें नहीं पता चलेगा कि क्या एरर हुआ है, बट यू विल गेट अ बेसिक आइडिया दैट क्या कहाँ पे कहीं पे मिस्टेक है. तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा इधर में कहीं मिस्टेक है. तो ये समझ में आया, अच्छा printf के बाद आई फॉरगॉट अ सेमीकोलन. तो सेमीकोलन इज अ पार्ट ऑफ द सिंटैक्स ऑफ द कोड, and this semicolon is called the terminator, which means it signifies that the statement is over. It is like a full stop which we use in English. Okay, तो अब ये करेक्शन किया, मैं वापस से कंपाइल करूंगा. तो जब तक ये 0 एरर्स नहीं आता ना, तब तक योर प्रोग्राम वोंट रन सक्सेसफुली. तो बिल्ड फिनिश 0 एरर्स मतलब योर प्रोग्राम इज एरर फ्री. एटलीस्ट सिंटैक्स एरर्स मिट गया.
नाउ यू विल रन दिस कोड. तो ये रन बटन है, इसको क्लिक करो एंड यू कैन रन योर कोड. ऑलराइट. Okay, now let's continue. So we understood what are the basic elements in a program and we actually ran our first program. So how many of you have got the output of this one? That's good. That's pretty good. All right. So again, as we discussed, printf is that function which prints everything which I give inside the double quotes onto the output screen. अब मैं इसमें कुछ भी दे सकता हूँ, जो मैं यूजर को दिखाना चाहता हूँ मैं वो दे सकता हूँ इसमें. ओके. अच्छा, इसमें एक /n दिया हुआ है, इसके बारे में मैं दिखाऊंगा जब मैं एडिटर में रन करूंगा. सो डोंट वरी अबाउट इट नाउ, मैं आज ही दिखाऊंगा. डोंट वरी. C statements end with a semicolon. This is called a terminator, which signifies end of a line. Okay. Okay. Now let us talk about escape characters. So what are escape characters? So suppose if I show you in the code, अभी ये वाला आउटपुट कैसा आ रहा है, एक बार सब लोग खाली स्क्रीन पे ही देखना. तो आउटपुट आ रहा है हेलो भाई लोग एंड प्रोसेस इज रिटर्न, मतलब ये आउटपुट आया. नाउ सपोज इफ आई गिव अ /n हियर, मैं एक /n लिखा हूं यहां पे. तो अभी तक हम लोग जितना सीखे उसमें आउटपुट क्या आएगा, हेलो भाई /n लोग. बट लेट्स चेक द आउटपुट. तो आउटपुट क्या आया है, हेलो भाई, और लोग जो है वो नीचे आ गया. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट ये /n क्या कर रहा है, दिस इज कॉल्ड अ न्यू लाइन कैरेक्टर. मतलब ये तुम्हारा कर्सर को जिस मोमेंट पे /n इनकाउंटर होगा उसी मोमेंट पे कोड को वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा एंड उसके बाद फिर बाकी का जो भी है वो प्रिंट होगा. देखो एक चीज मैं बहुत पहले से बता रहा हूं, मैं जो भी हम लोग जो भी कोड करेंगे यहाँ पे, इफ यू जस्ट थिंक दैट वॉट एवर इज रिटन ऑन द स्क्रीन, अगर उसको देखकर मैं टाइप कर लूं और मेरा आउटपुट आ गया तो आई हैव लर्न प्रोग्रामिंग, देन यू आर रियली इन अ कंफ्यूज स्टेट. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो स्क्रीन पे लिखा है या जो बुक में प्रोग्राम दिया है वो मेरा क्लास 9 का भाई भी वो देख के अगर टाइप करेगा एग्जैक्टली विथ द सेम सिंटैक्स तो उसका भी आउटपुट आ जाएगा. बट वी नीड टू लर्न हियर हाउ टू राइट द प्रोग्राम्स और प्रोग्राम का फ्लो कैसे हो रहा है. सो इट इज माई सजेशन टू यू, वेन एवर आई एक्सप्लेन, तो टाइपिंग को लेके इतना भावुक मत हो. आई विल गिव यू टाइम टू टाइप, आई विल प्रोवाइड यू विद द कोड्स, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोग्राम वर्क्स. देखो बेसिक सा एकदम फंडा है. तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो, मोस्ट ऑफ यू, सम ऑफ यू आर इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, सो दैट इज ऑल राइट, बट मोस्ट ऑफ यू आर इन फर्स्ट ईयर. तुम लोगों का सेकेंड सेमेस्टर चालू होगा, यू विल बी हैविंग अ कोर्स ऑन सी प्रोग्रामिंग. पूरा 4 महीने का कोर्स होगा वो. सो ऑब्वियसली इफ यू हैव कम हियर टू अटेंड द ट्रेनिंग ऑन सी प्रोग्रामिंग, अगर मैं वही एग्जैक्टली सेम चीज पढ़ाऊं जो कॉलेज में पढ़ाएगा तो तुम लोगों का क्या फायदा होगा? It won't work out, right? So in colleges what happens is they don't teach you how to develop logic and write programs. वो लोग सिर्फ तुम्हें सिंटैक्स ही बताएंगे टाइप करा के या बुक में या कैसे भी करके. तो उस समय you will be able to learn and practice a lot. But अभी what we need to do is we need to understand कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, what is the flow of the program, why are we writing what we are writing. That is what you need to learn. That why are you writing what you are writing. तो वो अगर समझ जाओगे तो घर जाके सी यू आर बैच 2, जो मैं बैच 1 का प्रोग्रामिंग ले रहा हूँ, सी प्रोग्रामिंग, उनका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है कोर्स. सो व्हाट दे आल्सो यूज्ड टू डू वाज, जो भी मैं कोड करा रहा हूँ, इफ दे आर नॉट फास्ट इनफ टू टाइप इट आउट एंड गेट द आउटपुट इन द क्लास, दे यूज्ड टू टेक अ पिक्चर और घर जाके वो उसको रन करते थे. बट दे इंश्योर दैट व्हाटएवर आई एक्सप्लेन तुम सुनो, क्योंकि उससे क्या होगा, whenever you will be presented in future, मैं तो पूरा 4 महीना तुम लोगों को नहीं रहूंगा तुम लोगों के साथ, but whenever you will be presented with a new problem to code,
you will know how to think. That is very important. So we'll try to build that. ठीक है? तो मेरा suggestion again, focus more on understanding why have we written what we have written. ठीक है? So now this is my code. तो समझ में आया what is the utility of /n? All right. So let us try to understand other escape characters. तो एक /t है, इस /t को समझने की कोशिश करते हैं. तो इससे क्या होता है, लेट अस सी द आउटपुट. तो मैं अब n को t से रिप्लेस कर दिया हूं एंड नाउ आई एम रनिंग माई कोड. तो ये वाला जो बटन है ना, दिस बटन इज डूइंग बोथ द टास्क. कंपाइल भी कर रहा है और फिर रन भी कर रहा है. तो 2 बार बटन क्लिक करने से अच्छा ये एक बार क्लिक कर दो, इट विल डू योर टास्क. तो मैं इसको सीधा क्लिक करूंगा. अब क्या आया आउटपुट देखो, हेलो भाई के बाद देयर इज अ लॉन्ग स्पेस. सो दिस इज टिपिकली द टैब स्पेस. जो टैब की होता है कीबोर्ड में, सो व्हेनेवर वी प्रेस द टैब की बहुत सारा स्पेसेस छूट जाता है, राइट? सो इट इज दिस टैब स्पेस. तो /t is used for tabs, to leave a tab space in your code if you want to. Okay? अब suppose, so any doubts in /t? Any doubts in /t? All good? अच्छा, एक और चीज, डाउट्स पूछने में शर्माना मत प्लीज. चाहे वो जितना ही सिली हो, आस्क. इफ इट इज टू बी सॉल्व एट दिस मोमेंट, मैं सॉल्व कर दूंगा. अगर नहीं होगा तो आई विल से कि वी विल बी सॉल्विंग इट लेटर ऑन. बट डोंट हेजिटेट इन आस्किंग, बिकॉज अभी तुम लोग नया नया सीख रहे हो. देयर माइट बी मेनी क्वेश्चंस, तो डोंट हेजिटेट, एकदम भी नहीं शर्माना है. ठीक है? ओके. अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है? आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन समथिंग लाइक दिस. सपोज विराट सेड वी आर द बेस्ट टीम. ओके, तो मुझे ऐसा का ऐसा ही प्रिंट करना है, दैट विराट सेड कोट्स वी आर द बेस्ट टीम, कोट्स बंद. ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई अगर किसी का स्पीच बोलना होता है तो वी पुट इट इन कोट्स. सो सपोज आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन. तो सर आप तो यही सिखाए हैं कि जो भी डबल कोट्स के अंदर देंगे वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा. तो मैंने कर दिया, डबल कोट्स खोले और ये डबल कोट्स के अंदर ये पूरा का पूरा चीज मैं डाल दिया. अब बताओ, इसको रन करें. लेट्स रन इट एंड सी व्हाट हैपेंस. तो मैं इसको पहले कंपाइल किया तो देखो कंपाइलेशन ही एरर आ गया. एंड टेल मी व्हाई एम आई गेटिंग दिस एरर? व्हाई एम आई गेटिंग दिस एरर? नॉट, नहीं, ऐसा रेस्ट्रिक्शन तो लाइफ में नहीं चाहिए ना कि डबल कोट्स एक ही बार यूज कर. फिर तो आई कैन नॉट प्रिंट समथिंग विच आई डिजायर टू प्रिंट. सो हियर द प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग इज, देखो कंपाइलर को थोड़ी मालूम है कि तुम क्या प्रिंट कर रहे हो. उसको तो जो सिंटैक्स दिया गया वो उसी हिसाब से काम करता है. तो यहाँ पे वो कंपाइलर देख रहे, ठीक है सेमीकोलन, डबल कोट स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा, कुछ स्ट्रिंग मिलते जा रहा है, और उसको ये सेमीकोलन दिख गया. तो कंपाइलर को क्या ट्रेनिंग मिला है कि जैसे ही मुझे एक सेमीकोलन स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, मैं समझ जाऊंगा उतना ही मेरा स्ट्रिंग है. फिर कंपाइलर हो गया कंफ्यूज कि भाई ये क्या है. ये पार्ट को कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये डबल कोट्स में तो नहीं है. तो दैट इज व्हाई वी हैव अ प्रॉब्लम. तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू यूज एस्केप सीक्वेंसेस. तो ये एस्केप सीक्वेंस क्या करता है? इट एस्केप्स दैट पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऑफ द कोड्स, और वो उसको वैसा का वैसा ही प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन में. तो मैं क्या चेंज किया हूं, जहां जहां पे मुझे उस मोमेंट्स पे जहां पे मुझे कोड्स को वैसा का वैसा प्रिंट करना था, वहां आई गेव अ स्लैश बिफोर द कोड, दोनों जगह. नाउ इफ आई कंपाइल दिस कोड, इट रन्स, इट इज हैविंग 0 एरर्स. नाउ अगर इसको रन करते हैं तो क्या आता है? अब देखो इसमें आ गया विराट सेड, कोट्स भी खुल गया, वी आर द बेस्ट टीम. ओके, सो व्हेनेवर यू वांट टू एस्केप एनी कैरेक्टर, मोस्टली वी यूज इट टू एस्केप डबल कोट्स एंड स्टफ, क्योंकि डबल कोट्स इसमें वो पकड़ ले रहा है. सो वी यूज एस्केप सीक्वेंसेस.
अब जैसे मान लो मुझे अगर ऐसा प्रिंट करना है, मैं इसको मिटा दूं, I want to go to USA/UK/Canada. या अगर मैं ऐसा लिखता हूं, तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, लेट्स सी। अच्छा, मैं स्लैश दूसरा दिया हूं, सो इट इज अगेन गिविंग मी सम एरर्स। क्या एरर दे रहा है ये? इसी में स्ट्रिंग में एरर दे रहा है। Why is this error coming? So this error is coming because ये देखो, ये स्लैश के बाद यू है, तो ये क्या बोल रहा है? इनकम्प्लीट यूनिवर्सल कैरेक्टर नेम। मतलब वो बोल रहा है कि ये यू को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, राइट? बट मुझे तो ये स्लैश देना है, तो क्या करें? सो आई विल गिव अनदर स्लैश हियर। एक और स्लैश अगर दे देते हैं तो मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, एंड नाउ माय आउटपुट विल कम समथिंग लाइक, ये यूएसए के बाद जो स्लैश में इशू हो रहा था वो स्लैश अब आ रहा है, देखो। सो इट इज यूज्ड टू एस्केप दैट आल्सो। तो समझ में आ रहा है एस्केप सीक्वेंसेस क्या काम आता है? गुड।